Ma'am, I can't hear your voice. Am I audible now? Ma'am, you are not audible. Yes, ma'am. 1 second. Now am I audible? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, good evening, everyone. How are you all? Good evening, ma'am. Okay. So, in the last session, you have created Google Business Profile, right? Was that clear to you? Any doubt regarding that, or the WordPress website that we have designed? Any issue with that? Any query regarding the WordPress website? राहुल का एक क्वेरी आया है मेरे पास कि लोगों का साइज वेबसाइट में फिट नहीं हो रहा है. एक्चुअली फ्री वर्जन में ये प्रो कंटेंट शो कर रहा है, तो वो आप उसको रीसाइज तो नहीं कर सकते हो, बट जब आपका पेड वर्जन होगा वहां पर आपके पास रीसाइजिंग का ऑप्शन रहेगा. ठीक है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ. अभी जो साइज में आ रहा है वो साइज आप फिट कर सकते हैं. एक बार मैं और बता देती हूँ कैसे आप कर सकते हो इसको. फ्री वर्जन में नहीं होगा, पेड वर्जन में मैं आपको शो कर देती हूँ. ओके, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं. Is my screen visible? Yes, Is ma'am. it visible? Okay. So this is the paid version. Paid version means I have purchased the domain and hosting here. So for uploading the logo, you have to click on the customize. Go to appearance, go to customize, and from here you have to click on this global header builder. Okay, यहाँ पर you will see the site title and logo section. Just click on this, and here you will get the option to upload your logo. If you want to change the size of your logo, here is the option for changing the size of your logo. Okay, like this, right? So this is how you can set your logo on your website, but this option is available only on the. Who is this? Rajiv, please mute yourself. Rahul, got it? How to adjust your logo on a website? Yes, ma'am. Okay, but on free version this feature is not available. You can only adjust this on your paid domain. Okay, any other doubt? और कोई डाउट है किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड? एनीवन? Okay, so in the previous session I have given you a task for designing your WordPress website, as well as writing 2 articles on that website, on that WordPress website, and optimize it according to the on-page SEO steps that we have discussed. Is it done? Is it completed?
I have uploaded an assignment on the Stu Intern Valley portal also. So there you have to upload your assignment. Okay, no one will send me the website link or the article link on WhatsApp or my personal email. No, you have to, Rahul, you have to submit it on the portal itself, on the Stu Intern website. Okay, is it clear to all? सभी को क्लियर है? Okay, what about others? Yes, ma'am. uh, Rashmi, is your assignment completed? Rashmi, am I audible to you? Yes, yes. Shivam, okay, is it completed? Not yet. Okay, so by the next Friday you have to complete your task assignment, and you have to upload it on the Stu Intern portal. Okay. हेलो Yes, Shivam. मैम, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ मैम, पोर्टल पर अपलोड है। असाइनमेंट कर चुके हो, अपलोड करना है? कर चुका हूँ मैम। कर चुके हो? ओके, ठीक है, मैं चेक, पर मैंने असाइनमेंट तो आज ही उस पर किया है। सेकंड वाले असाइनमेंट की ही बात कर रहे हो आप, वर्डप्रेस जी डिजाइनिंग एंड मैम। आर्टिकल्स वाला? जी मैम। ओके, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। इसके अलावा कोई और है जिसने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या अपलोड कर दिया है? नहीं? ओके, सो अब आप लोगों को करना है ये, ठीक है। तो अभी किसी को भी वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टू द ऑफ पेज एसईओ। प्रोफाइल क्रिएशन आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सो टेल मी, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? यस, राजीव, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी, राजीव? क्लास में आप लोग आंसर नहीं करोगे तो आप लोग का अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। यस राजीव, बोलिए। यस मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, तो ऑफ पेज एसईओ आपने पढ़ा है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है बताएंगे? हेलो हेलो, हाँ जी शिवम, आप बताइए क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? ऑफिस एसईओ मैम वो ऑप्टिमाइजेशन है जो हम लोग वेबसाइट के बाहर पर जहाँ करते हैं, जैसे दूसरे साइट पर करते हैं, वो ऑफ पेज एसईओ कराता है मैम। जैसे बैकलिंक्स बनाना हो गया, जैसे ऑन ऑफ पेज एक्टिविटीज और भी हो गया, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन मैम, बिजनेस लिस्टिंग बताई थी, और भी है मैम। वो सब करते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर, जिससे सर्च या रिजल्ट पेज में हमारा वेब पेज दिखाई देता है मैम। विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, इंगेजमेंट इंक्रीज होती है, ये सब में इम्प्रूवमेंट होता है ऑफ पेज वेरी, एसईओ। okay, okay. So yes Vaibhav, what is Google business profile and how it is useful? My answer was for off-page SEO was the same as my colleague said. Okay, And and what about the Google business profile? Google actually, my concept of Google business profile is, ma'am, so कि as Google uh, constantly goes on, means what we'll say, scan our website or backlinks or the traffic on our website, which Mm-hmm. means the algorithms used by Google is regularly scanning our website and the trafficking on, according to which the ranking of our website is done. Okay, okay, take care. So basically, off-page SEO and Google Business Profile. Let us revise once again. Um, you were right. Both of you were right. शिवम ने भी सही कहा। मैं एक बार पीपीटी आप लोगों को शेयर करती हूँ। Is it visible to you? The PPT is visible? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So
Off-page SEO is, as Shivam has mentioned, off-page SEO is, refers to the no to all the efforts that we do to improve a website's unpaid search engine rankings without making changes on the website itself. Okay, means हम off-page SEO में वेबसाइट पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे, वेबसाइट के बाहर जो भी हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर Like एग्जांपल इट कैन blogging, इंक्लूड, सॉरी, like blogging and hyperlinks in the blogging yes, to be added. yes. So it can include the link building, guest posting, social media marketing, right? These things are commonly included in off page SEO. ठीक है? Now, what is the goal of off-page SEO? Goal of off-page SEO is to get search engines and users to see your website as more trustworthy and authoritative, right? Means हम जो भी टेक्निक्स ऑफ पेज एसईओ में फॉलो करते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, उसका गोल ये होता है कि सर्च इंजन एज वेल एज जो यूजर्स हैं हमारे, उन्हें हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी और अथॉरिटेटिव लगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी important part of successful SEO strategy, right? Is that clear what is off page SEO? Now, what is the importance of off page SEO? Just one second. Okay, so um, off-page SEO factors like backlinks, reviews, and recommendations help search engines see your website as reputable. Okay, as many backlinks you have on your website, it will actually increase the reputation of your website. Okay, one of the best ways to build your credibility in the eyes of search engines is to focus on experience, expertise, authoritativeness, and trustworthiness, which is known as EEAT. EEAT के बारे में किसी को पता है? मीन्स यदि हमें अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है सर्च इंजन के आईज में, सो हमको किस किस फैक्टर पर फोकस करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस पर, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है या फिर हमें फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, तो इन्हें कहते हैं EEAT इन शॉर्ट. किसी को पता है EEAT क्या होता है? क्या है ये 4 फैक्टर्स? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. नो? Okay, no problem. So, yes, Vaibhav, tell me, what is EAT? It's a kind of what we'll say algorithm or a framework which Google uses to scan to evaluate or we can say to check our website's content quality. Yes, correct. Means EAT is a concept Google's quality raters use, right? When evaluating search results and also providing feedback to improve future algorithm updates, right? Means हमारा जो content है उसको इवेल्युएट करने के लिए ये फैक्टर्स यूज करते हैं जो गूगल्स के क्वालिटी रेटर्स होते हैं. ठीक है, और ये लोग फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम अपने फ्यूचर एल्गोरिदम अपडेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ EEAT क्या होता है सभी को? ओके, नाउ what is the difference between on page SEO and off page SEO? How will you compare or how will you differentiate between the two? ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स एंड द वे in which we done on page SEO and off page SEO. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Who will tell me? Yes, Vaibhav.
Ma'am, on page SEO, we focus on the content of the website and the what we will say visibility, we can say, or the attractiveness of a website. We do it on in the on page SEO, and in off Mhm. page SEO, we try to um, uh, bring our website in a limelight according to the Mhm. Google algorithms to Mhm. attract the traffic towards our website. Okay, good. So basically, what is the main difference between on-page SEO and off-page SEO? In the on-page SEO, we will do all the process on the website itself, and all the things that we do actually is now focused on enhancing the user experience, right? जो भी हम on-page SEO में techniques या steps follow करते हैं, उन सभी वो सभी पहली बात तो हम वेबसाइट पर ही करते हैं, हमारी वेबसाइट में ही हम चेंजेस करते हैं ऑन पेज एसईओ में। एंड सेकंड थिंग इज, जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं या जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ के थ्रू, वो फोकस होता है यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। ठीक है, मतलब कि यूजर एक्सपीरियंस जो भी हमारे विजिटर्स विजिट कर रहे हैं वेबसाइट को, उनके एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अब यदि हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें, सो ऑफ पेज एसईओ is all the activities that we do off of our website, yeah, outside our website. ठीक है, that is off page SEO, right? And it is mainly focused on no building या फिर building credibility of the brand or increasing the trustworthiness or reputation of the website। ठीक है, मतलब कि ऑफ पेज एसईओ में जो भी टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं, उसका मेन फोकस क्या होता है कि पहली बात तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो वेबसाइट के बाहर करते हैं, वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं करते ऑफ पेज एसईओ में, राइट? मतलब कि लिंक्स दूसरे वेबसाइट पर जाकर शेयर करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, लिंक बिल्डिंग करना, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। एंड सेकेंड थिंग इज, जो भी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज है, उनके थ्रू हम अपने वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसे रेपुटेबल बनाते हैं एंड एज वेल एज उसकी अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस या फिर क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं मतलब कि लोग हमारे कंटेंट पर, हमारे ब्रांड पर विश्वास करें। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स जो है वो उसके लिए होती है कि रेपुटेशन जो है हमारी वेबसाइट की, अथॉरिटेटिवनेस जो है हमारी वेबसाइट की, वो इंक्रीज हो। ठीक है, ये कैसे होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर है डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ? एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? Okay, so after this we have um, some steps that we have to do, या फिर how to do off page SEO, let's see। Okay, so here are some points that you can see on your screen। uh, just one second। Oh, is the PPT visible? No, ma'am. Oh, one second। Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, so what is the first step that we have to do in off page SEO? It is earn quality backlinks from high authority websites। Okay, so what are high authority websites and how we can calculate the authority of any website? Any idea? Anyone? What are high authority websites? Yes, Rahul. Anyone? What are high authority websites? No? Okay. See, high authority websites are the website well established on the search engine, okay, and already ranking on the search engine, and their content, yeah, we can say search engine sees them
Yes, Rashmi, high PNDA, page authority and domain authority. Okay, the website that has high page authority and high domain authority. Okay, correct, very good. So, मतलब जो हाई अथॉरिटी की वेबसाइट होती है वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट है? उनका जो डोमेन अथॉरिटी होगा और पेज अथॉरिटी होगा वो हाई होगा, ठीक है। और गूगल जो है उनके कंटेंट को एज अ क्रेडिबल कंटेंट या फिर अथॉरिटेटिव कंटेंट देखता है और उस वेबसाइट के रेपुटेशन गूगल की नजर में या सर्च इंजन की नजर में बहुत हाई होती है, ठीक है। अब ये कैसे अटेन कर सकते हैं और ये चेक कैसे कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी how to check the authority of any domain authority and page authority of any website? Anyone? Yes. हाँ मैम जी शिवम, मोज पर चेक कर सकते हैं, गूगल का मोज है ना, फिर ये उस पर गूगल मॉस पर चेक कर सकते हैं। गुड, करेक्ट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर दैट, हाउ टू चेक द डोमेन अथॉरिटी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, so this is the website moz.com. Okay, here we will check the domain authority of a website. Let's check domain authority of facebook.com. Okay, so check authority. You just have to mention the link of your website and click on check authority. Okay, so here it is showing domain authority is 96, linking root domains 63.2 million, ranking keywords 26.7 million, and spam score is 1%. ठीक है, यहाँ जो वेबसाइट्स है जिससे ये लिंक्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन है, और जो डोमेन्स इससे लिंक्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन है, राइट। सो कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये एक तो तरीका हो गया कि अथॉरिटी चेक करने का, ठीक है। बट गूगल किस हिसाब से ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है? फर्स्ट इज कि आपका जो कंटेंट है, जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो, दैट शुड बी रेलेवेंट and it should be correct. Okay, there should be no false information on your website. Okay, then only you can create the credibility of your content amongst your audience as well as in the search engine sites. Okay, तो आप जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हो अपने वेबसाइट पर, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सभी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने जो वेबसाइट का कंटेंट है उसके बेसिस पर क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर सको अपने ऑडियंस के बीच में, ठीक है। Second thing is link to as many domains as possible, ठीक है, but all the domains should be of high authority, ठीक है। आप जितने भी डोमेन से लिंक करते हो अपनी वेबसाइट को, वो सभी डोमेन जो है हाई अथॉरिटी के होने चाहिए। आप किसी भी डोमेन से या फिर किसी भी वेबसाइट से लिंक करने से पहले उसका अथॉरिटी यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए, आप पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उस टूल को यूज करके आपको ये चेक करना है कि उसकी अथॉरिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। आपकी आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है उससे एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यदि बहुत कम है तो आप 30 अथॉरिटी तक जा सकते हैं, और यदि थोड़ी अच्छी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है तो आप 50 अबव जो भी डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी है उस पर अपना वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए कि 80, 90, 100 वाली वेबसाइट्स पर जा सको, ठीक है। क्लियर है? तो जितने ज्यादा यूनिक डोमेन से हम अपने वेबसाइट को लिंक करेंगे और जितने ज्यादा हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट के साथ अपने वेबसाइट को लिंक करेंगे, उतने ज्यादा हमारे वेबसाइट के रेपुटेशन को इंक्रीज करने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, इज दैट क्लियर?
So you have to link your website या फिर your domain to unique domains, as many unique domains as possible, and all the domains should be of high authority. ठीक है, this is the must and should condition. ठीक है, अब और क्या तरीके होते हैं जिनके थ्रू हमारे जो वेबसाइट का जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो सकता है, या फिर अथॉरिटी इंक्रीज होती है. बेसिकली बाय द टाइम आपका जो वेबसाइट का रैंकिंग है वो इंक्रीज होता है, अथॉरिटी जो है इंक्रीज होता है, बट the thing required is you have to rank your keywords for that. ठीक है, जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप रैंक करोगे अपने वेबसाइट के, धीरे धीरे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर भी अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो. जितने ज्यादा कीवर्ड्स आपके रैंक होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी जो है या फिर एक्सपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी गूगल के नजर में. ठीक है, second thing is again you have to link your content with high authority websites. ठीक है, और टाइम जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होता जाता है. ओके, what exactly the authority resembles? Okay, authority resembles या फिर authority refers to the reputation of your website. Okay, means how good content your website contains. Okay, or how authentic is your content. ठीक है, जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है या फिर कितना कितनी एक्सपर्टीज है उसमें, कितनी अथॉरिटेटिवनेस है, ये बेसिकली शो करता है अथॉरिटी. ठीक है, तो basically the main concept to link your website to high authority website is that let us take an example for that. Okay, means how many people supports you. Okay, and how many of them are high power people. ठीक है, that is actually the high domain authority, right? Means कि आप हो आप किसी इलेक्शन में खड़े हो फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से कितने लोग पावरफुल लोग हैं. ठीक है, जब आप कोई बात कहते हो, यदि उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ पावरफुल लोग आपके पास है सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाती है. ठीक है, और यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो पावरफुल नहीं है, जिन्हें कोई भी नहीं जानता, वो यदि आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बात को देर में सुना उसको भी जाएगा, लेकिन हो सकता है उसको सुनने में थोड़ी देर लग जाए. होता है ना, जब भी हमको कोई काम करवाना होता है हम सोर्सेस ढूंढते हैं कि ये पावरफुल सोर्स है, इससे हम अपना काम करवाते हैं. सो सेम इज द केस विद दिस अथॉरिटी एंड लिंक बिल्डिंग. ठीक है, कि if we are using high authority domain or high page authority websites या फिर high page authority website pages or to link to our website or domain, then Google will see our website as credible website, the content on our website as credible content. Okay, and it will rank our website eventually. ठीक है, is that clear? Vaibhav, is it clear? Yes. So one second. So this is the authority concept. Now if I'll talk about link building, so link building is the heart of off-page SEO. Okay, if there are many credible websites linking to your website, it tells Google that you are providing relevant quality content and people enjoy reading your content. ठीक है, when means what will happen when you link to several domains or several pages, what will happen, the traffic from that domain will divert to your website. Okay, eventually it will increase the traffic on your website, and what search engine will see that this particular website is receiving traffic from so many domains and so many pages, okay, that are actually not the part of this website. Okay, means other domains and highly reputed domains are supporting this website. Okay, so that means this
website is providing good quality content or relevant content. Okay, that's why people are taking interest in its content. Okay, and this is how it will actually give a good ranking to your website on सर्च इंजन. ठीक है, मतलब कि जब आप ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स और ज्यादा से ज्यादा पेजेस से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो, तो क्या होता है, उस डोमेन से या उस पेज से ट्रैफिक जो है वो आपके वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा कि वहां का जो ट्रैफिक है वो आपके वेबसाइट पर आने लगेगा, मतलब ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा आपके वेबसाइट पर. इससे गूगल को क्या लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तभी इसकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ रहा है. प्लस जो हाई अथॉरिटी डोमेन है वो भी इस डोमेन को रेफर कर रहे हैं, मतलब कि अथॉरिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट को रैंकिंग मिल जाएगी सर्च इंजन पर. ये शिवम बोलिए, कोई क्वेरी है? मैम ये अगर डोमेन ऑथोरिटी ज्यादा है और उस वेबसाइट पर जैसे डोमेन से ज्यादा है 90 है, स्पेन स्कोर भी मैम 90 है, एग्जाम्पल है मैम, तो ओके. उस सिचुएशन में उस साइट का यूज करना है या नहीं करना है मैम? नहीं, स्पैम स्कोर यदि ज्यादा है तो आपको उस वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना है. ओके, सर मैम स्पैम स्कोर कैसे इंक्रीज हो जाता है किसी साइट पर ही? आप कुछ स्पैमी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए लोग ब्लैक हैट एसईओ की भी मदद ले लेते हैं. ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ इज, ब्लैक हैट एसईओ पता है आप लोगों को? व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ? यस मैम, जो वेब मास्टर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, जैसे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 बैकलिंक्स, टायर 4 भी 5 भी बना देते हैं कितने लोग, तो वो मैम ब्लैक हैट इशू के अंदर आता है. यस यस, लाइक कमेंट्स में अपने वेबसाइट को मेंशन करना लिमिटेड ठीक है, लेकिन पूरे उसी को फॉलो करना, बहुत ज्यादा रिपीटेड एक्शंस इसी को फॉलो करना कि कमेंट्स में अपने वेबसाइट को शेयर लिंक कर रहे हैं, या फिर फोरम्स पे रिपीटेडली अपने वेबसाइट को नो लिंक कर रहे हैं, अपने ही कंटेंट को लिंक कर रहे हैं. ऐसे जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं that will fall into black hat SEO, या फिर black hat SEO are the practice that is defined as negative या फिर wrong in as per the guidelines of webmaster. ओके, जो webmaster है उनके उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन जो रॉन्ग एक्शंस है किसी भी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो जो टैक्टिक्स है यदि वो आप फॉलो करते हो अपने वेबसाइट पर, so that will be considered as black hat SEO. ठीक है, तो जब ये ब्लैक हैट एसईओ की टैक्टिक्स आप लोग फॉलो करते हो अपने वेबसाइट पर, इससे क्या होता है, कुछ स्पैम स्कोर आपकी वेबसाइट का इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और कभी कभी आपकी वेबसाइट पैनलाइज भी हो जाती है. ठीक है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्पैम स्कोर इंक्रीज हो सकता है आपकी वेबसाइट पर. ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी है. प्लस जो भी वेबसाइट ऐसी है जहां पर स्पैम स्कोर हाई है, उससे अपनी वेबसाइट को लिंक नहीं करना है हमें. ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम लेंस क्या होना चाहिए स्पेन स्कोर का किसी वेबसाइट पर, जैसे जो ना डी अच्छा है लेकिन स्पेन स्कोर लेंस क्या होना चाहिए जो कि यूज करेंगे? मतलब एक बार फिर से रिपीट कीजिए. डोमेन ऑथोरिटी 90 है, स्पेन स्कोर हाँ कितने लेंस के अंदर में होना चाहिए जो कि यूज करना चाहिए? जैसे कि फेसबुक का 1% था, तो इसे मान हाँ चला हाँ, यूज कर सकते हैं, उसी तरह से मैम इसका लेंस कितना होना चाहिए कहीं? बहुत बहुत कम, मतलब कि पहली बात तो आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी देखनी है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है. ठीक है, उससे भी कम होना चाहिए उसका स्पैम स्कोर. 1 to 10 या फिर 20 तक चल जाता है. ठीक है, इससे ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बार कोरा का स्पैम स्कोर चेक करते हैं. ठीक है, मेरी वेबसाइट स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो मैम. अच्छा, 1 सेकेंड. Is it visible now? यस मैम. Okay. So, Quora वेबसाइट किसी को पता है? यूज करते हो आप Quora? यस मैम, उसको क्वेश्चन आंसर भी मैम यूज होता है. Yes, yes. Let's check the spam score of this.
10% है, राइट। लेकिन फिर भी इसको हम यूज कर सकते हैं कोरा को, ठीक है, बट रिपीटेडली नहीं। कोरा बहुत अच्छी वेबसाइट है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बट इसका स्पैम स्कोर कितना है, 10%, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है खुद आकर अपने वेबसाइट को मतलब अपना कंटेंट यहाँ पर सबमिट करते हैं, प्लस अपने जो लिंक्स है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ में फोरम्स का भी मेंशन होता है कि डोंट यूज repetitively the forums for creating the backlinks, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार तो ये नहीं करना है, बट कोरा पर आप अपने आंसर्स कुछ सबमिट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो कोरा से मतलब आपको बैकलिंक मिल जाएगा वहां से, प्लस आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किसी ने आंसर किया है पहले कोरा पर? Yes, ma'am. ओके, तो आपके लिए एक टास्क भी रहेगा ये कि पहले आप लोग ये वाला टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम कोरा जो ऑफ पेज एसईओ उसका भी प्रैक्टिकल करके और उसका भी मैं आपको एक टास्क दूंगी कि कैसे आप लोगों को ये क्रिएट करना है अपने वेबसाइट के लिए। जो भी आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाए हैं उसके लिए हम एक्चुअल बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट है अभी पूछने के लिए? नो मैम। ओके ओके, एक और हम देख लेते हैं। रेडिट यूज करते हो आप लोग? reddit.com वेबसाइट विजिट की है? यस मैम। लेट्स सी इसका स्पैम स्कोर क्या है, 3% है, ठीक है। रेडिट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। रेडिट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये सारे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर जाकर आप अपने वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, ओके, ठीक है। सो इसके बाद we were discussing the link building, right? So ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। सो अर्न क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर टू डू ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग इट दिस पॉइंट? क्या करना है आपको हाई अथॉरिटी वेबसाइट से यदि आपको बैकलिंक लेनी है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू? कैसे मिलेगा, कैसे रिक्वेस्ट करोगे आप, या फिर कैसे बैकलिंक लोगे एक किसी भी हाई अथॉरिटी डोमेन से या हाई अथॉरिटी वेबसाइट से? गेस्ट पोस्टिंग, यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सो यस राहुल, गेस्ट पोस्टिंग वाज करेक्ट कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करना पड़ेगा। गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ आपको अपने कंटेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू शेयर रेलेवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर भी एंड दूसरों की वेबसाइट पर भी, ठीक है। ऑन बोथ दी वेबसाइट्स यू हैव टू शेयर गुड क्वालिटी कंटेंट, ओके, so that the websites itself mention you as a brand on their website, ठीक है, और they will approve your backlink whenever you request them to link back to your website, ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब कि आपको गुड क्वालिटी कंटेंट शेयर करना है अपने वेबसाइट पर भी और दूसरों की वेबसाइट पर भी, ताकि उससे क्या होगा, जो ब्रांड्स है वो खुद आपके वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जब आप उन्हें रिक्वेस्ट करोगे अपने वेबसाइट को मेंशन करने के लिए तो वो इजीली आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक, राइट। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट एंड शेयर यूनिक एंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। मतलब कंटेंट मार्केटिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पेज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? एनीवन? कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? नो वन?
Okay, so content marketing is basically to share high quality and engaging content, ठीक है, on various websites. Yes, Vaibhav? Ma'am, we have to create a type content in such a type that the audience to our website has to be get engaged, and they should get an informative information from our content, which we can say a content marketing, as we can reach to our target audience very easily and in a very mannerful manner, Yes, correct. mannerful way. So yes, yes. So means we have to share the information that is relevant, that is important for our audience, and we should always share it in good quality content, and that content, the content that we are sharing, it should be no true information. Okay, the content that we are sharing, it should contain true information, ठीक है. There should be no false facts or false information in your content, ठीक है. एक बार यदि false information आपने share कर दिया, it will actually impact the trustworthiness or the credibility of your content or your brand, ठीक है. यदि आप false content किसी भी तरीके से share करते हो, या गलती से भी आपसे false content share हो गया है, तो आप बाद में अपोलोजाइज कर सकते हो कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी एंड दिस वन इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. बिकॉज यदि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप गलती से भी शेयर करते हो, उसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट के रेपुटेशन पर, ठीक है. सो गुड क्वालिटी कंटेंट यू हैव टू शेयर, ओके, एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रू एंड इट शुड बी यूजफुल फॉर योर विजिटर्स, ठीक है. क्लियर? Now next is and the content should be engaging too, ठीक है. engaging तभी होगा, यूनिक होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि एक ही टॉपिक पर कई सारे लोग कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है. why the traffic will divert to your website? okay, only if you provide the content in the unique way, ठीक है. if you provide the unique content, then only the traffic will divert to your website, ठीक है. इसलिए आपको यूनिक कंटेंट शेयर करना है अपनी वेबसाइट पर, एंड वो एंगेजिंग भी होना चाहिए. सो कंटेंट को एंगेजिंग बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कंटेंट को एंगेजिंग बनाने के लिए? Can add attractive images to the website. ओके, We can add animations also. ओके. यूनिक Plus, कीवर्ड्स, यस. unique keywords also can be added, and we can give proper hyperlinks also if we don't want to elaborate our contents, which will help the user to if he wants to get more acknowledged, or to get more information about that content, we can give a proper keyword on which we can give the hyperlink to the like a Wikipedia or anything, which can elaborate all the things to him instead of adding the more and more content to our website. करेक्ट, करेक्ट. मतलब वैभव ने जो मेंशन किया कि एक मिनट, रश्मि ने भी आंसर शेयर किया है कुछ. ओके, क्रिएट ब्लॉग्स, कंटेंट एंड यूनिक कीवर्ड्स. यस. सो यूनिक कीवर्ड्स, हम यूनिक कीवर्ड्स या फिर हाई ट्रैफिक जिस कीवर्ड पर है, ठीक है, या फिर हाई वॉल्यूम जिन कीवर्ड्स पर है, वो कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. प्लस कंटेंट हम यूनिक बनाएंगे, एंड और क्या चीजें मेंशन करनी है हमको अपनी वेबसाइट को, सॉरी, अपने कंटेंट को एंगेजिंग करने के लिए इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं जो कि अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है. जो भी हम वर्ड्स या जो सेंटेंसेस या फिर जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत ही सिंपल होनी चाहिए जो हर किसी को समझ में आए, ठीक है. यदि आप बहुत ही हार्ड वोकैबुलरी यूज करते हो अपने कंटेंट में, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को आपका जो कंटेंट है वो ही समझ नहीं आएगा. आपने देखा होगा व्हेन विल डू दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज या फिर ऑन पेज एसईओ, व्हेन वी डू that we have the readability concept, and in the readability we have flash score reading. किसी ने नोटिस किया है, देखा है फ्लैश स्कोर रीडिंग? हमने जब ऑन
शिवम कुमार यूज कंटेंट। ओके, जब हमने ऑन पेज एसईओ किया था तब मैंने आप लोग को रीडेबिलिटी स्कोर बताया था, जिसमें एक फ्लैश स्कोर रीडिंग था, याद है किसी को? नहीं? ओके, सो व्हाट वाज दैट पॉइंट कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो बहुत ही इजी वर्ड्स में होना चाहिए। यदि 6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी आपका कंटेंट पढ़ रहा है उसको भी वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, और कोई प्रोफेशनल भी आपका कंटेंट पढ़ रहा है उसको भी वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है? सो इट शुड बी इन वेरी नो सिंपल लैंग्वेज, natural language you have to use, conversational language you have to use, and as Shivam has mentioned, um, FAQ we can add to our content, okay, to make it engaging means FAQ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो questions हमारे visitors ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर आप कर सकते हो अपने वेबसाइट में अपने ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पर भी जाकर आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। कोरा फोरम इज बेसिकली दैट ओनली। क्यों वहां पर इतना ट्रैफिक है? क्योंकि वहां पर लोग जाकर सर्च करते हैं उनकी क्वेरीज, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनके, और वहां पर उनको कई सारे आंसर्स मिलते हैं उस क्वेश्चन के, राइट? सो वही एफएक्यू जो है वो आप अपने वेबसाइट पर या फिर अपने कंटेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इज देयर एनी वेबसाइट फॉर नो फाइंडिंग आउट दीज क्वेश्चंस that our visitors, our target audience is searching for? This we have discussed earlier actually, so I want the answer. कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हमको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है? पता है किसी को? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनीवन? नो? आंसर द पब्लिक हमने एक वेबसाइट देखी थी जब हम कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट कर रहे थे। किसी ने विजिट किया है आंसर द पब्लिक? नो वन? आप लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ एक बार स्क्रीन। This is the website. Is my website, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so this is the website. Here you will get the questions that your target audience is searching for. Okay, for example, let's say residential real estate is my keyword. Okay, so I will find questions related to the residential real estate. So this is how it will mention all the question keywords. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो भी कीवर्ड सर्च करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन होंगे, ठीक है। वाई, देन ये प्रीपोजिशन के बेसिस पर है, फिर कंपैरिजन के बेसिस पर होगा, ठीक है। बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस विल मेक योर लॉन्ग टेल कीवर्ड आल्सो। For example, will the residential real estate market crash? Can REITs investing in residential real estate? Can you do commercial and residential real estate? जो आपको रेलेवेंट लगता है अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको वही सिलेक्ट करना है, बट दिस इज द गुड वेबसाइट फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चंस फॉर योर FAQs, okay, for your blogs. Is it clear? Any doubt related to anything that we have discussed today or previously? कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है। टास्क क्लियर है आप लोगों को? क्या करना है? असाइनमेंट क्लियर है? व्हाट इज द असाइनमेंट? राजीव, व्हाट इज द असाइनमेंट? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी राजीव, क्या है असाइनमेंट?
नो आंसर। किसी को पता है असाइनमेंट क्या है? नो मैम। यस मैम। क्या है असाइनमेंट? मैम राहुल? हाँ, वेबसाइट क्रिएट करनी है और उस पर 2 ब्लॉग बनाने हैं जो ऑन पेज एसईओ से ऑप्टिमाइज होने चाहिए। यस करेक्ट। वैभव, मैं रिपीट कर देती हूँ। असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू डिजाइन अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं एंड इफ यू हैव द पेड वर्जन यू कैन यूज दैट टू। ठीक है, तो आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करनी है एंड यू हैव टू राइट 2 आर्टिकल्स एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज दोज आर्टिकल्स। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको आर्टिकल्स पर। ठीक है, और उसके बाद कोई भी मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे या फिर मेल पर पिंग नहीं करेगा। आप लोगों को स्टू इंटर्न की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पर असाइनमेंट सेक्शन में जाना है और असाइनमेंट में आपको अपलोड का असाइनमेंट भी दिख जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट 2 करके मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपना असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? No one will ping me in the no personal in the WhatsApp or on my mail. ठीक है, you have to submit your assignment on the portal itself. ठीक है, क्लियर है सभी को? एंड यस। बाय द नेक्स्ट फ्राइडे आपको ये कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, क्लियर? ऑफ पेज ऐसे से रिलेटेड कोई इशू किसी को भी? नो? ठीक ठीक है। यस राहुल बोलिए। मैम यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं? क्या? गेस्ट पोस्ट करने के लिए कोई वेबसाइट? हाँ, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, अभी तो हमको वाइंड अप करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट सेशन में गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट है किसी को? गूगल गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन क्लियर है सभी को? क्लियर है कैसे करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन? कोई डाउट है उससे रिलेटेड? ओके, ठीक है, तो आई एम कंसीडरिंग दिस, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोगों को क्लियर है। यदि कोई डाउट होता है आप नेक्स्ट सेशन में पूछिएगा। एंड आपने गेस्ट पोस्टिंग पूछा है, गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, फोरम सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं ऑफ पेज एसईओ में, ये उसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, और ये वेबसाइट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं? Okay, so let's wind up the session for today. Thank you so much.